Good afternoon everyone and welcome back in the class of important questions series. No, now we are doing important questions of chapter 14, which is ecosystem. Okay. Now you can see that maximum marks of this chapter is 5 marks, in which you can see the dividation that MCQs have 1 marks. Okay. So there will be a only single question of this chapter in the form of MCQ. Single question in the form of very short questions, and 2 questions in the form of short question of 1.5 marks each. Okay. So let's start with the MCQs, and our first MCQ is man-made ecosystem is man-made ecosystem is. तो देखिए आप लोग, man-made ecosystem means the question is talking about the artificial ecosystem, in which we can say artificially generated aquarium. Okay. Now gardens. Okay. Stable soil. So these are the examples of man-made ecosystem. Now you have to see all the 4 options, and then you can choose according to options के अंदर क्या आ रहा है, what are the options having, जो भी आपको सही लगे वो आपको टिक करना है. Then next question, total percentage of PAR. Total percentage of PAR. What is PAR? Photosynthetically active radiation. Photosynthetically active radiations. These are the percentage in total sunlight. Total sunlight में जो percent है वो 50%. But how many percentage of PAR radiations are used in the photosynthesis? So it is a 2 to 10% from 50%. Okay. So both the percentage are different. आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे. अगर कंप्लीट रेडिएशंस का जो परसेंटेज पूछा जा रहा है, देन इट इज अ 50%. अगर क्वेश्चन आ रहा है द प्लांट, हाउ मेनी परसेंट ऑफ पार रेडिएशंस आर यूज्ड बाय द प्लांट, सो इट इज 2 to 10%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, which is the transferring energy, amount of transferring energy from one trophic level to another trophic level. So transfer of energy from one trophic level to another trophic level is 10%. कितना लॉस कितना होता है? 10%. तो transfer of energy is not correct. It is a loss of energy. Loss of energy from one trophic level to another trophic level is 10%. Okay. So our next question is energy pyramids. Energy pyramids are always, कैसे होते हैं हमेशा ये? upright. are always upright. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है the species which grow on the barren surface or barren land. The species which grow
और हम कह सकते हैं समटाइम्स अटैक वर्ड भी आपको मिलेगा ऑन बैरन, बैरन एरिया, बैरन सरफेस, बैरन लैंड, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या बोलेंगे इसे हम? पायोनियर स्पीशीज। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो लाइकेन। अगर लाइकेन आपको कहीं मिल रही है मीन्स वहां पे स्पीशीज एस्टेब्लिश हो सकती है बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है total amount of inorganic substance in the soil is known as, क्या बोलेंगे उसे हम? टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस into the soil is known as, क्या कहेंगे उसे? परमानेंट स्टेज और स्टेडी स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हायर नंबर इन फूड चेन। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 4। फूड चेन में किसके नंबर जो है हायर नंबर होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स, हर्बीवर, कार्निवर और टॉप कंज्यूमर्स। तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ प्रोड्यूसर आ रहा है मतलब प्रोड्यूसर्स, लेकिन अगर डीकम्पोजर्स आ जाते हैं ना और प्रोड्यूसर है ऑप्शन में तो भी प्रोड्यूसर ही करना, और प्रोड्यूसर नहीं है ऑप्शन के अंदर तब हम करेंगे डीकम्पोजर्स। ठीक है। तो ये आपके कुछ एमसीक्यूज है जो या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे सेम पैटर्न में, या फिर आपको इन्हीं में से कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो कुछ 3-4 फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं आपको बता देती हूँ। फॉरेस्ट, ग्रास एंड grasslands and desert are example of which type of ecosystem? terrestrial ecosystem। किसका एग्जाम्पल है? terrestrial ecosystem का। ठीक है, terrestrial ecosystem का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, in an ecosystem energy flow is always unidirectional and nutrients dash occurs। एक्चुअली मैंने इसका आंसर ही बोल दिया इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज डैश, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एनर्जी वापस पीछे की तरफ नहीं आती। एंड न्यूट्रिएंट डैश अकर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अकर। ठीक है, उनकी क्या होती है? साइक्लिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। तो मैं लिख देती हूँ इन एन ecosystem energy unidirectional
तो देखो इसमें ना फिलिप्स के दो जो है स्पेसेस दिखेंगे। अभी या तो मैंने यहाँ पे फ्लो लिख दिया FLOW, या फिर इसकी जगह पे आपको फिलिप मिल जाएगा एंड न्यूट्रिएंट डैश अकर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अकर्स, ठीक है, या फिर साइक्लिंग ऑफ डैश अकर्स। तो आप उस वक्त वो स्टेटमेंट रीड करके फिर देखो फिलिप्स या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा या ये, आपको स्टेटमेंट रीड करके देखना है क्या फिट हो रहा है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज in dry weight of, किसका भी ड्राई वेट हम निकाल सकते हैं, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डैश परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। ड्राई वेट में कितना होता है 49% होता है, कार्बन का टोटल अमाउंट कितना होता है 49% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टोटल कार्बन फिक्सेशन, टोटल कार्बन फिक्सेशन बाय फोटोसिंथेसिस पर एनम कितना है, टोटल कार्बन फिक्सेशन कितना होता है पर ईयर, तो 10 इंटू 10⁻13 सॉरी 4 इंटू 10⁻13 पर ईयर या फिर पर एनम, जो भी आप लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट, कोई फिलअप नहीं आ रहा आपके, ये कुछ मेजर फिलअप थी। देखो अब इसके अंदर पार के थ्रू भी पूछ सकता है, ये परसेंटेज भी पूछ सकता है, एनर्जी लॉस, एनर्जी ट्रांसफर, कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर। तो दीज आर द सम फिलअप्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर। नाउ we are doing, yes, one more fill up is there कि major source of carbon on the earth is ocean, ocean है सबसे बड़ा major source, ठीक है। now very short questions, very short questions, क्या है ये very short question, तो देखते हैं हम, just a minute, give me 2 minutes only। Okay, the process of interlinking of animals in which energy flow from one trophic level to another trophic level is known as, क्या कहते हैं उसे, food chain, which is known as food chain। next short question जो आपसे पूछ रहा है, which is lake, pond और क्या है, rivers are the example of, किसके examples हैं ये, तो these are the example of terrestrial ecosystem, और कौन सा ecosystem आता है आपके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है ना, लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इट इज एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3,
vertical distribution of different categories is known as trophic level. Vertical distribution clear, is known as trophic level. Next question says total dry weight produced, total dry weight is produced per year. कौन से के अंदर पूछ रहा है ये आपको? कंप्लीट बायोस्फीयर के अंदर कितना टोटल ड्राई वेट पर एनम पूछा जा रहा है ये, तो ये कितना है आपका 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन, एंड इन विच यू कैन सी दैट 55 जो है वो आपका एक्वाटिक के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, और इसमें से 55 आप माइनस कर लो, रेस्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के थ्रू प्रोड्यूस होता है ड्राई वेट. क्लियर? We are talking about that dry weight, not complete biomass नहीं पूछ रही है. Next question है आपका, how many type of nutrient cycles are there? Nutrient cycles कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट आपका गैसियस है ना, गैसियस साइकिल, और दूसरा क्या है? सेडिमेंटरी cycle. Next question, which is the main source of light? So it is the sun. It doesn't matter कि question क्या है. Next है आपका write down the some example of detritivores. तो it is a earthworm. क्या है वो? earthworm है. What are the produces? The organism which fixes energy, जो energy को fix करता है and produce some organic substances are known as producers. उन्हें हम क्या कहते हैं? producers कहते हैं. Next है what are the main sources of phosphorus on the earth? earth पे phosphorus का main source क्या है? तो rocks. क्या है phosphorus का main source? rocks are the main sources of phosphorus. phosphorus का main source है rocks. ठीक है? So these are the some very short type of questions in which see food web की definition भी पूछी जा सकती है, food chain की definition भी पूछी जा सकती है. तो मैंने जो first question लिया था उसमें definition थी और आपको answer लिखना. It may be opposite, चेंज भी हो सकता है. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन और व्हाट इज फूड चेन, आपको डेफिनेशन लिखने को भी कहा जा सकता है. ओके, नाउ वी विल कम ऑन द शॉर्ट क्वेश्चन. शॉर्ट क्वेश्चंस आपके दो आने वाले हैं, ठीक है ना? कौन से हैं, किस टाइप के आएंगे देखिए. ये राइट डाउन द कमेंट्स ऑन primary productivity and net primary productivity. So total production of biomass is known as primary productivity. Net primary productivity gross minus respiration is known as net. complete definition लिखेंगे, formulas लिखेंगे, per annum, per year, per hectare, वो सब additional करके इसको explain करना है. ठीक है ना? next question है what do you mean by humus? तो upper surface of the soil after humification, black color की जो soil है उसे हम क्या कहते हैं? humus, जिसके अंदर आपको small जो है nutrient particles मिलेंगे. ठीक है?
और देखो क्योंकि ह्यूमस पूछा ना, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द मेजर क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन के अंदर राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशंस। तो उसके अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, या फिर इनमें से किसी एक की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फूड वेब। देखो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बोला था और ये क्वेश्चन है ना। तो इंटरलिंकिंग ऑफ मोर देन वन फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। कोई भी दो फूड चेन को आपको इंटरलिंक करना है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाना है कि वो किस तरीके से इंटरलिंकिंग हो रही है। कोई एक का भी लॉस हो गया तो कैसा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो 10% लॉस ऑफ एनर्जी फ्लो मॉडल। तो 10% लॉस बताना आपको। देखो ये सन है, सन बना दिया आपने, इसमें से क्या होगा 10% लॉस हो गया और ये प्रोड्यूसर्स ने कितना लिया 90% के फॉर्म में, और ये 10% किसके फॉर्म में चला गया, हम सपोज करें हीट के फॉर्म में। फिर इसको किसने खाया है, हम कह रहे हर्बीवर्स में, जो क्या है प्राइमरी कंज्यूमर है, और इसका 10% लॉस यहाँ पे हो गया। अब हर्बीवर से कहाँ गया है, कार्निवोर्स में, जिसके अंदर ये क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर है, जिसमें 10% फिर से लॉस हो गया है ना। तो इस तरीके से ये लॉस पे लॉस होता रहता है। 10% लॉस मॉडल है। आपको अच्छे से डायग्राम, यहाँ पे आप ट्री बनाएंगे, यहाँ पे कुछ भी जो भी आपको हर्बीवर इजीली बनाना आता है, कार्निवर आता है सेकेंडरी, और फिर आप टॉप कंज्यूमर भी बना सकते हो। यहाँ पे या तो इसको लिख दो टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर बना रहे हो आप, और क्या बना रहे हो, ग्रासलैंड फूड चेन बना रहे हो, तो ये गॉट बना देना, ये वुल्फ बना देना, और ये लायन बना देना। फिर आप 10% लॉस दिखाओ यहाँ पे भी, और नहीं बना रहे हो, इतना ही बना रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के आपको तो 10% लॉस जो है उसको शो करना है। क्लियर। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स डेफिनेशन लिखनी है, फिर टाइप्स ऑफ नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, किसका अपराइट है किसका इन्वर्टेड है, वो सब एक्सप्लेन करना है। देखो एक्सप्लेन कार्बन साइकिल अच्छे से समझाना है। देखो हमारी बुक में चलते हैं हम वापस, ट्री था, बर्निंग हो रही थी, CO2 निकल रही थी, CO2 वापस फिक्स की, प्लांट डेड हुआ, हम लोगों ने रेस्पिरेशन किया, CO2 निकाली, कहाँ सेडिमेंटेशन हो रहा है कार्बन का ओशंस के, वापस CO2 निकली। तो एक कंप्लीट कार्बन साइकिल जो है आपको बना के समझाना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल सर्विसेज। इकोलॉजिकल सर्विसेज से आप क्या समझते हैं, तो देखो हमें क्या क्या फ्रूट्स मिलते हैं, प्रोडक्शन मिलता है ना, टिम्बर मिलता है, शेल्टर मिलता है ना, और एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मिलता है, नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। सो दीज आर द इकोलॉजिकल सर्विसेज। हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, गैसेस साइक्लिंग होती है, वो सारा इकोलॉजिकल सर्विसेज के अंदर ही आता है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन में है आपके, वो यही पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। मीन्स यू हैव टू लर्न बोथ द साइकिल्स। ठीक है, वन इज गैसेस साइकिल, वन इज सेडिमेंटरी साइकिल। वन मेजर सोर्स ऑफ कार्बन साइकिल इज ओशंस। उधर क्या लिखेंगे हम, रॉक्स लिखेंगे। फिर आपको जो भी दिमाग में साइकिल को देख के जो भी मेन इसके डिफरेंसेस नज़र आते हैं वो आप लोग लिख देंगे। क्लियर। बस मेन तो आपके देखिए यही है, क्योंकि मेजर क्वेश्चन इस चैप्टर में से है नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के कुछ टाइप थे। अब आप अगर कुछ प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ले लेंगे।